الوداع 2025 نیوزی لینڈ میں نئے سال 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئے سال کی آمد پر آکلینڈ اور سڈنی جگمگا اٹھا ہے۔ آکلینڈ میں نئے سال کی آمد پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نئے سال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آکلینڈ، اس کے بعد سڈنی میں نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ پر رات 12 بجے اور نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر رات 2 بجے، جبکہ لندن اور پیرس میں کل صبح 4 بجے سال نو کا جشن ہوگا۔ روایتی کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ بڑی تعداد میں جمع لوگ نئے سال کے لیے دعائیں مانگیں گے اور اپنے پیاروں کو مبارکباد دیں گے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں نیو ایئر ٹی پارٹی پر روایتی اوپرا پیش کیا جائے گا۔ سال 2025 کا سورج غروب ہونے میں چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سال نو پر جشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ رات 12 بجے گورنر ہاؤس کراچی میں تاریخی آتش بازی ہوگی۔ نئے سال پر ہوائی فائرنگ جشن نہیں، جرم ہوگا۔ سال نو کے موقع پر ٹریفک پولیس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی اضافی نفری کلفٹن اور سی ویو کے اطراف میں تعینات ہوگی۔ ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک کو آج کی رات 2 بجے کے بعد سڑکوں پر آنے کی اجازت ہوگی۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے تمام سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو خبردار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ صرف ہوائی فائرنگ کا نہیں بلکہ اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے ذیشان ملک اس وقت کراچی پولیس چیف کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ذیشان، بتائیے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے نئے سال کے موقع پر پیغام جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے شہر تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس موقع پر شہزادہ فہد بن سلطان نے نئے سال کی مبارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شہزادہ فہد بن سلطان کی جانب سے نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ فہد نے اس موقع پر نائب وزیر اعظم کو تبوک کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں معزز شخصیات نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک سعودی تعلقات کے استحکام اور فروغ میں شہزادہ فہد بن سلطان کی ذاتی دلچسپی اور کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے سال نو کے جشن کے موقع پر ٹریفک پولیس نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ہمارے نمائندے عارف حبیب ڈی ایس پی ایڈمن کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈی آئی جی ٹریفک آفس میں ڈی ایس پی ایڈمن کاشف نعیم صاحب کے ساتھ۔ آج سال نو کے موقع پر کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے سی ویو، کلفٹن، اس کے اطراف میں ٹریفک کے کیا انتظامات کیے گئے، ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 31 تاریخ ہے اور آج رات جو ہے وہ نیو ایئر شروع ہوتا ہے اور جس کو منانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سی ویو کا رخ کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح ٹریفک پولیس نے اسپیشل ارینجمنٹس کیے ہیں۔ ہماری جو روٹین کی ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ تقریباً 570 آفیسر اور جوان جو ہے ہم نے ڈپیوٹ کیے ہیں۔ اس میں ایس ایس پی صاحبان ہیں، ڈی ایس پی صاحبان ہیں، انچارجز ہیں، ہماری پیٹرول کاریں ہیں، پھر ہمارا اپنا جو ڈرون یونٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور اس طرح ہم اس کی ساری مانیٹرنگ کریں گے اور لوگوں کو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ خوشی خوشی آئیں اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم نے صرف ایک روٹ جو میک ڈونلڈ سے لے کے کلاک ٹاور کی طرف جاتی ہے سی ویو، اس کو وقتی طور کے اوپر ون وے کیا جائے گا تاکہ ٹریفک کا رش نکالا جائے۔ جو حضرات میک ڈونلڈ سے سی ویو کی طرف انٹر ہوں گے وہ آگے براستہ کلاک ٹاور اور پھر آگے دو دریا سے گھوم کے گولف کلب اور پھر واپس اپنا اختر کالونی اور کرنگی کی طرف، کرنگی روڈ کی سے واپس اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ تمام اپنی فورس کے ساتھ ہم سارے روڈ پہ موجود ہوں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے وہاں پہ۔ ڈی آئی جی صاحب خود اس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود فزیکلی ہوتے ہیں، تمام ایس ایس پیز روڈ پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے آفس کا اسٹاف ہے ڈی آئی جی ٹریفک کا اور ایس ایس پی آفس کے،
उन सबको हमने रोड के ऊपर जो है वो डेप्यूट किया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ हम रोड पे मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ डीएसपी एडमिन काशिफ नईम मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि 9:30 के मौके पर कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ट्रैफिक के इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कराची में नए साल की आमद के साथ ही शहर भर में बेकरियों और मिठाइयों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। न्यू ईयर की खुशियों को मीठे अंदाज में खुशामदीद कहने के लिए केक और मिठाइयों की खरीदारी में नुमाया इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात ज़ीशान मलिक की इस रिपोर्ट में। नए साल का जश्न हो या कोई त्योहार, कराची वाले खूब जम के मनाते हैं। नए साल को खुश आमदीद और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए चॉकलेट, कपकेक्स और रिवायती मिठाइयाँ खरीदने वालों का रश है। दिलकश अंदाज में सजाया गया है और मुख्तलिफ डिजाइन्स के केक्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने। दुकानों में दिलकश अंदाज में सजे केक्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरी अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ नए साल की खुशियां मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। मिठाइयाँ बांटें हम एक दूसरे को, और नए साल की एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हो, ताकि हम एक दूसरे के लिए खुशियाँ एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करें, और हमारी भी यही कोशिश होगी कि एक दूसरे को और प्यार मोहब्बत से रखें। नए साल की खुशी में ये है कि खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें और अपने लोगों को मोहब्बत बांटें, ताकि और दुआ करें पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली आए पाकिस्तान में। दुकानदारों का कहना है कि नए साल के मौके पर फरोख्त मामूल के दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हो जाती है। हमारे पास नए साल में लोग आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, केक वगैरह ज़्यादा सेल हो रहे हैं, और मिठाइयों के लिए बहुत आ रहे हैं, बाहर से भी बंदे आते हैं बहुत, और बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर है कि मिठाई से ज़्यादा अभी जो नए साल की खुशी में केक चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड हमारी बहुत अफवाह हुई है, तो इस हवाले से केक माशाल्लाह बहुत रनिंग चल रही है सर। ऑर्डर तो मेरे पास ये हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से 30 से 35 ऑर्डर हैं, सारे अबव के बड़े ऑर्डर केक हैं सर, क्योंकि कोई अपने जो रिश्तेदारों को गिफ्ट दे रहा है, कोई नए साल की खुशी में किसी अपने दोस्तों को गिफ्ट दे रहा है, इस वजह से ऑर्डर बहुत है। शहरियों का कहना है कि केक और मिठाइयों की खरीदारी नए साल की रवायात का हिस्सा है, जबकि इस मौके पर सबकी यही दुआ है कि नया साल मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की लेकर आए। न्यू ईयर पर केक और मिठाइयों की खरीदारी में नुमाया इजाफा, नए साल को मीठे अंदाज में खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी, जबकि बेकरियों और स्वीट शॉप्स पर खुसूसी केक्स की तैयारी जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद 18वीं नेशनल वर्कशॉप बराए बलूचिस्तान में शिरकत की। वर्कशॉप में बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर तफसीली गौर किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद मिर्जा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने GHQ हेडक्वार्टर में 18वीं नेशनल वर्कशॉप बराए बलूचिस्तान में शिरकत की है, जिसमें बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और इसकी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर किया गया है। उन्होंने अपने खिताब में बलूचिस्तान के अवाम की हिम्मत और हुब्बुल वतनी को सराहा और सूबे की तरक्की और खुशहाली में इसकी अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत की मुतअद्दिद इक़दाम को भी सराहा है, जो अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए सूबे के वसी इक़्तिसादी इम्कानात को बुरवेकार लाने पर मरकूज हैं। उन्होंने सिविल सोसाइटी की मुस्बत किरदार को भी तस्लीम किया है, खुसूसन प्रोपेगेंडे की तरदीद और पायदार तरक्की को फरोग देने में उनकी अहमियत को उजागर किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने सियासी मफादात को पर से पुष्ट रख कर बलूचिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर पर भी जोर दिया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस की तरफ से इशारा करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती वाले अनासर सूबे में तशद्दुद और बदअमनी फैला रहे हैं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त इक़दाम के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के इलाकाई अमन और सालमियत के अज़म को भी दोहराया है और कहा है कि किसी भी किस्म की सरहदी खिलाफ वर्जी का सख्त फैसला को जवाब दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। ढाका में खालिदा ज़िया के जनाजे के मौके पर दोनों रहनुमाओं का मुसाफ़ा।
जिसे सियासी हलकों में एक हैरान कुन पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान मुलाकात ढाका में हुई। दोनों रहनुमा बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास आए और दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पाई जाती है और दोनों ममालिक के दरमियान हर किस्म के सियासी और सिफारती राबते भी मुनक़ता हैं। 2 साल का बिल जो मईशत वर्से में मिली वो शदीद चैलेंजेस का शिकार थी। माशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे, मगर अब हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को कारोबार के लिए ज़्यादा आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। हमें मुत्तहिद होकर साबित कदमी के साथ आगे बढ़ना है। इनका कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। अफरात ज़र 29.2 से कम होकर 4.5% तक आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। टैक्स टू GDP की शरह 8% से बढ़कर 10% हो गई। 2 साल में हुकूमत ने बेहतरीन माशी तरक्की के 10 लाख नए टैक्स दहंदेगान सिस्टम में दाखिल हुए। PIA और फर्स्ट एमन बैंक की कामयाब निजकारी हुई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को दुरुस्त सिमत में डाल दिया है। माशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कराची में निस सदी बाद डबल डेकर बसें फिर चल पड़ी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध ने शहरियों को मुबारक देते हुए कहा कि नई बस सर्विस सफरी सहूलियात को आसान बनाएगी। शहर आगे बढ़ रहा है, आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इन हुकूमत का नए साल का तोहफा, कराची में निफ सदी बाद डबल डेकर बसों का पहिया फिर रवा दवा हो गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने शार फैसल पर 5 डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। सीनियर वजीर ने कहा पूरे शहर में डबल डेकर बसें चलाएंगे। सड़कों की बेहतरी के लिए 9 अरब रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। कराची की सड़कों के लिए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मेयर कराची हैं, तमाम लोग मिलकर बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कल जो सिंध कैबिनेट की मीटिंग थी, सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए सिंध काबीना ने 9 अरब से ज़ायद की रकम मखसूस की, जो कि आउटसाइड बजट है कि हम जितने में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो शिकायतें थी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए 9 अरब से ज़ायद की रकम रख रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची के अवाम को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा नई बस सर्विस शहरियों के सफर को आसान बनाएगी। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। डबल डेकर बसों में खसूसी अफराद की 2 नशिस्तें समेत 60 अफराद के बैठने और 30 से ज्यादा अफराद के खड़े होने की गुंजाइश है। इसकी छत मौसम के लिहाज से खोली या बंद की जा सकती है। ये बस मॉडल कॉलोनी मलीर से शार फैसल फवारा चौक तक 22 किलोमीटर सफर तय करेगी। इसका किराया 80 और 120 रुपए रखा गया है। साल 2025 में कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी कारकर्दगी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर सरबराह ऐवान बाला कैसा किरदार अदा किया। जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। साल 2025 में कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी कारकर्दगी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने एक नुमाया और मौसर किरदार अदा किया। दोनों ने न सिर्फ कानून साजों को अमल को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया, बल्कि ऐवान में पार्लिमानी अदारों और डिसिप्लिन को बरकरार रखने में शानदार महारत दिखाई। अयाज सादिक की क़यादत में कौमी असम्बली ने अहम बिल्स और इस्लाही इक़दाम पर भरपूर बहस को यकीनी बनाया। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से शोरगुल और सियासी एहतजाज के बावजूद इजलासों को मौसर तरीके से चलाया और कानूनी कार्रवाई में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं होने दिया। इनकी क़यादत में ऐवानों की कार्रवाई रवां और शफाफ रही, जिससे मुल्क की तरक्की और इस्लाहात के लिए कानून साजी का अमल मजबूत हुआ। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट ने कौमी अहमियत के मसाइल पर फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने अपोजिशन के मुबाहिसे और एहतजाज को मुनासिब अंदाज में संभालते हुए ऐवान की कारकर्दगी को मुतवाज़न और फ़ाल बनाया। सेनेट की कारकर्दगी में इनकी क़यादत ने
یہ یقینی بنایا کہ ملکی قوانین وقت پر منظور ہوں اور عوامی مفادات کے منصوبے بر وقت آگے بڑھیں۔ سال 2025 میں دونوں ایوانوں کی یہ کامیاب قیادت ملکی جمہوریت کی مضبوطی اور پارلیمانی ڈسپلن کی عکاس ہے، جسے پاکستان کی قانون سازی کا عمل نہ صرف موثر بلکہ عوامی توقعات کے مطابق آگے بڑھا۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ خبر دیں گے کراچی کے ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں۔ ناظم آباد پھول گلی میں دکانوں کے باہر قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کی زیر نگرانی کیا گیا، جس میں KMC انتظامیہ نے بھی حصہ لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے سمیر راجپوت سے۔ جی سمیر، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جی، شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں تو ضلع وسطی میں جو ہے تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ شہری انتظامیہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً جو ہے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں مسمار کی جاتی ہیں، سافٹ انکروچمنٹ کو بھی ضبط کیا جاتا ہے، لیکن تجاوزات مافیا جو ہے اسے دوبارہ قائم کر دیتے ہیں۔ ناظم آباد کی پھول گلی ہے، جس کو جو ہے وہ ناظم آباد کی پہچان مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ تجاوزات کی بھرمار تھی، جس کی وجہ سے وہ گلی پوری طرح بند ہو گئی تھی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ٹریفک کی روانی پوری طرح متاثر تھی۔ آج جو ہے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد ہیں، جن کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا۔ پھول والی گلی کو تجاوزات مافیا سے واگزار کروا لیا گیا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کی دکان کے باہر اسے مسمار کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ پہلے ان کو وارننگ دی جا چکی تھی، اس کے باوجود جو ہے تجاوزات مافیا نے دکانوں کے باہر چبوترے اور تھلے قائم کیے ہوئے تھے۔ خلاف ورزی کرنے پر 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کا یہی کہنا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے تک جو ہے شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے تجاوزات مافیا کو تنبیہ کی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ تجاوزات کا خاتمہ کرے۔ تاہم ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیر راجپوت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 2025 میں سندھ اسمبلی سیاست کا محور رہی۔ ایک طرف ایوان میں کئی اہم معاملات پر قانون سازی ہوئی تو دوسری طرف اپوزیشن عوامی مسائل پر توجہ دلاتی رہی۔ سندھ اسمبلی کے ایوان نے بھارتی جاریہ سمیت کئی اہم معاملات پر اتحاد کا مظاہرہ بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سال 2025 میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان نے کبھی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں تو کبھی کندھے سے کندھا ملایا۔ سندھ اسمبلی میں کئی اہم معاملات پر قانون سازی کی گئی۔ منشیات کی روک تھام، ٹریفک قوانین، جامعات سے متعلق ترامیم، پولیس اور امن و امان سے متعلق اب تک 55 بلز منظور ہوئے، جن میں ترمیم کے حوالے سے 84 ترمیمی بل منظور ہوئے۔ بلدیاتی نظام، مزدور اور گھریلو ملازمین کے حقوق، انتظامی اور ڈیجیٹل اصلاحات سے متعلق قوانین سے متعلق 85 ترمیم منظور کر لی گئیں۔ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراحت میں اضافے کا قانون بھی منظور کیا گیا۔ بھارتی جاریت، دریائے سندھ پر 6 کینالز کی تعمیر، 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ کے معاملے پر ایوان نے متفقہ طور پر قراردادیں منظور کی۔ سندھ اسمبلی میں 22 ماہ گزرنے کے باوجود 2 جماعتوں کے 4 منتخب ارکان نے تاحال سندھ اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا، جن میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور GDA کے پیر سید محمد راشد شاہ راشدی بھی شامل ہیں۔ حکومتی اراکین نے بھی رواں سال میں سندھ اسمبلی کی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سال 2025 کے دوران اسپیکر اویس قادر شاہ نے ایوان کی کارروائی بر وقت شروع کرنے اور رولز کی خلاف ورزی پر اپنی ہی پارٹی کے اراکین کو بھی کئی بار تنبیہ کر کے نئی مثال قائم کی۔ سندھ اسمبلی سیاست کا محور رہی، اہم معاملوں پر قانون سازی ہوتی رہی، اپوزیشن عوامی مسائل پر توجہ دلاتی رہی۔ اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان نے کبھی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں تو کبھی کندھے سے کندھا ملایا۔ بھارتی جاریت، کینالز کی تعمیر، 18ویں آئینی ترمیم اور دیگر پر ایوان میں متفقہ طور پر قراردادیں منظور ہوئی۔ 22 ماہ بعد بھی 2 جماعتوں کے 4 منتخب ارکان نے تاحال سندھ اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا۔ سال 2025 میں بھی کراچی کے شہری آوارہ کتوں کے کاٹنے سے محفوظ نہ رہ سکے۔ رواں برس کتنے معصوم بچے اور شہری آوارہ کتوں کی وحشت کا نشانہ بنے، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں آوارہ کتوں کی دہشت بردستور برقرار۔
कराची में रवा बरस सरगर्दगी के वाकयात तवातुर से रिपोर्ट होते रहे। कराची के 3 बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटने के 50,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। निजी अस्पताल में 18,000, इंडस अस्पताल में 17,000 जबकि सिविल अस्पताल में 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। आवारा कुत्तों के काटने से फैलने वाले मर्ज रेबीज के बाइस अब तक 19 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार गए। कराची में सरगर्दगी के वाकयात में खतरनाक इजाफा संगीन अवामी सेहत का मसला भी बनता जा रहा है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे आवारा कुत्तों की आबादी पर मौसूल कंट्रोल के इक़दाम करें ताकि शहरी को रिलीफ मिल सके। सियालकोट के निजी अस्पताल में कैंसर से लड़ने वाली 48 साल खातून की मौत के बाद मुताल्लिका अमले ने कानों की बालियां उतार ली। लवाहिकीन ने गैर इंसानी सलूक पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं सियालकोट से मोहम्मद अशरफ। सियालकोट के निजी हॉस्पिटल में इंसानियत के तजलील का वाक़या पेश आया, जहां पर कैंसर से जूझने वाली 48 साल शाजिया लियाकत की मौत के बाद अस्पताल के मुतल्लिका अमला ने मुर्दा औरत की बालियां तक उतार ली। मेरी बीवी जनाब इमरान अदरीस अस्पताल में दाखिल थी, तो सुबह डेड बॉडी में हमें इन्होंने दी है, तो उसके कानों में जो बालियां थी वो उतार ली हैं अमले वालों ने। इमरान अदरीस टीचिंग हॉस्पिटल में इससे पहले भी इंसानियत सोज वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जिसे बाअसर इंतजामिया की तरफ से हर बार दबा दिया जाता है। इस अफसोसनाक वक़ुआ पर इमरान अदरीस टीचिंग अस्पताल की इंतजामिया से रब्ता करने पर उनकी तरफ से कोई मौका पेश ना किया गया। इमरान अदरीस टीचिंग हॉस्पिटल इन्होंने ट्रेनिंग गाह बनाई हुई है, बस अभी हालिया मौके में ये जो मुर्दा खतून की वालियां नोच ली, ये तो पूरी इंसानियत को तज़ील है। बस पंजाब भर में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में दर्जनों मरीजों के साथ किसी न किसी तरीका से जुल्म सितम की दास्तान रकम होती रहती हैं, लेकिन इस वाकया में इंसानी तजलील की तमाम हदें अबूर करते हुए इमरान अदरीस टीचिंग अस्पताल के अमला की तरफ से कैंसर से जूझते हुए मरने वाली मुर्दा खातून की सोने की बालियां तक नोच ली गई हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने तमाम साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वालों को खबरदार कर दिया है। कहते हैं हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ हवाई फायरिंग का नहीं बल्कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक इस वक्त कराची पुलिस चीफ के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल नए साल की आमद है, साल 2026 तो आ रहा है, तमाम कराची पुलिस की जानिब से जो है वो कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार कराची में तमाम तर तफरीही मुकामात जो है वो मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे। कराची पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो इंतजामात है, तमाम तर तफरीही मुकामात, खासकर CVU की बात की जाए या दीगर तफरीही मुकामात की बात की जाए, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी से लैस जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियाँ हैं, वो उन पर जो कैमराज हैं वो कराची के शहरियों की हफाजत के लिए सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दे देगी। इस हवाले से मज़ीद क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए एडिशनल RG कराची जावेद आलम ओढो की ही ज़बानी सुनते हैं। मुकामात को बंद करना आमतौर पर काफ़ी अरसे से हुकूमत सिंध की पॉलिसी रही है। CM साहब और HM साहब, तो हम उसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन इंतजामात हम अच्छे करेंगे। हर जगह प्रेजेंस होगी, पुलिस के नाके होंगे और प्लस खास तौर पे ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जिगजैग्स और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ताकि अगर रश कहीं पे बढ़ जाता है तो उसको हम रेगुलेट कर सकें और लोगों पे वॉच भी रख सकें। तो बाकी इंतजामात हमारे अल्लाह के फजल से मुकम्मल हैं। 5,500 से 6,000 के करीब नफरी फॉर्मली डिप्लाई होती है पूरे शहर में, मुख्तलिफ तफरीही मकामात पे, मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग जाते हैं न्यू ईयर पे, तो ज़रूर मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं। जहाँ पे फायरिंग होगी, जहाँ पे कोई नुकसान होगा या एहतमाल होगा, उसकी FIR होगी और FIR हम इक़दाम कत्ल की करेंगे। जी बिल्कुल, एडिशनल RG कराची का यही कहना है कि शहर भर में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ किए गए हैं। कैमराज की मदद से मुल्ज़मान की निशानदेही भी की जाएगी और सख्त मुकदमात कायम किए जाएंगे।